کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لاہوریوں پر مہربان 8 سال بعد لاہور کی سنی گئی۔ عید کے دوران صفائی کے میراتھن آپریشن کے بعد ترقیاتی امور پر توجہ۔ شہر کی ریویمپنگ پروگرام کے لیے 140 ارب 29 کروڑ کا بجٹ تجویز۔ 867 اسکیموں کے لیے 71 ارب 66 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص۔ عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عمران۔ دیکھیں، چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اس وقت بڑی نگاہ ہے پورے پنجاب پر، خاص طور پر لاہوریوں پر مہربان ہے، اور 8 سال بعد لاہور کی جو ہے دوبارہ سنی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں عید پر بھی دیکھا گیا کہ صفائی ستھرائی کی میراتھن اور کمبنگ جو ہے وہ آپریشن کیا گیا، اور اس میں جو ہے لاہور ٹاپ کر گیا، اور پورے پنجاب میں 1,80,000 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں، جس پر آج شام وزیر اعلیٰ پنجاب ایک سیریمونیل تقریب بھی کر رہی ہے، جس میں تمام جو افسران ان کو بلا کر جو ہے ان کو تعریف کی جائے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ سنجیدہ ہیں، اور باغوں کے شہر کی ریویمپنگ پروگرام کے لیے 140 ارب 29 کروڑ کے بجٹ کی تجویز سامنے آئی، جس میں اس کا تخمینہ لاگت اور اسکیمیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں۔ لاہور کے گلی محلے، کوچے، پسماندہ اور بستیوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ ریویمپنگ پروگرام میں نکاسی آب، پختہ سڑکیں، اسٹریٹ لائٹس، گلیاں، پارکس اور قبرستان کی بحالی کا کام بھی پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے۔ 867 اسکیموں کے لیے 71 ارب 66 کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ اس وقت جو ہے شامل کی گئی ہے اور مختص کر دی گئی ہے، جبکہ مضافاتی اور پسماندہ علاقوں کے لیے 68 ارب 63 کروڑ روپے کی رقم تجویز کر دی گئی ہے۔ ریویمپنگ پروگرام کے 3 پیکیجز تجویز کیے گئے ہیں، جس میں پہلے پیکیج میں 6 زون، پیکیج 2 میں 3 زون کی ترقیاتی اسکیمیں شامل ہیں، جبکہ پیکیج 3 میں مضافاتی اور پسماندہ علاقوں کے شامل کیا گیا، جس کو تجویز میں رکھا گیا، جس کے لیے 68 ارب 63 کروڑ کی رقم بھی تجویز کر دی گئی ہے۔ ریویمپنگ پروگرام مکمل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے افسران کو 10 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اسی سلسلے میں لاہور میں ایک دفعہ دوبارہ اس کا حلیہ جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کو ریویمپ کرنا ہے، اس کی سڑکیں گلیاں پختہ کرنی ہیں، خاص طور پہ سیوریج کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا ہے، تمام جو جگہیں ہیں ان کو پختہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ لاہور شہر ایک ماڈل شہر ہے، میٹرو بس اور ٹرین کا شہر ہے، اور یہاں پر تمام تر سہولیات جو ہیں شہریوں کو دی جاتی ہیں۔ عید پر بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صفائی ستھرائی پر خاص طور پر دھیان دیا گیا۔ صفائی ستھرائی میں پاکستان میں پنجاب نمبر 1 پر آیا، جبکہ لاہور نے ٹاپ کیا۔ اسی سلسلے میں جو ہے تمام طرح وسائل بروئے کارڈ لائے جا رہے ہیں، اور اس والے سے افسران جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کوئی اپنے آفیسز میں نہ بیٹھے، اس والے سے تمام افسران فیلڈ میں موجود رہیں گے، چاہے بارش ہو چاہے صفائی کا مسئلہ ہو، فوری طور پر حل کروایا جائے، اور تمام جو لوگ ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں ان کی جو شکایت ہیں اسی وقت حل کروائی جائیں۔ اسی سلسلے میں شہر لاہور کے لیے 8 سال بعد 140 ارب 29 کروڑ کا جو بجٹ ہے اس کو تجویز کر دیا گیا ہے، اور یہ 10 ماہ میں کام مکمل کیے جائیں گے، جس میں گلی محلے، کوچے، پسماندہ اور مضافاتی بستیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی کہ لاہور شہر کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر لاہور رافیہ حیدر کو یہ ٹارگٹ سونپ دیا گیا ہے کہ تمام جو فرسٹ رپورٹنگ ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کے ذمہ کی گئی ہے، تمام جو بجٹ ہے اس کو مختص کرنا ہے، جو اس کے پیکیجز ہیں ان میں لگانا ہے، اور اس کام کے لیے 10 ماہ کا جو ہے ٹارگٹ سونپ دیا گیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ عمران۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ذمہ داری کا احساس، نا انسانیت کا خیال، ڈاکٹرز اور نرسز کی ہٹ دھرمی برقرار، سسکیاں لیتے مریضوں کی آنکھیں اشکبار۔ جنرل میو جناح سروسز اور گنگارام ہاسپٹل کی اوپیڈیز بند، شیخ زید، لیڈی ویلنگٹن، لیڈی ایچسن ہسپتال میں بھی کام بند، اوپیڈیز کو لگے تالے، مریضوں کو منہ چڑھانے لگے۔ دور دراز سے آئے مریض اور لواحقین کا حکومت سے احتجاج ختم کروانے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں سامعہ سعید سے جو اس وقت سروسز ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ جی سامعہ بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت میں سروسز ہاسپٹل کے باہر موجود ہوں، جہاں پہ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے جو ہے او پی ڈیز جو ہیں وہ بند کی جا چکی ہیں، باقاعدہ طور پر تالے لگائے جا چکے ہیں۔ یہاں پر مریض اور ان کے لواحقین جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن مایوس ہو کے آہو بکا کر کے، اور مریض جو ہے درد سے تڑپ کر، سسکیاں لے کر اور آہیں بھر کر جو ہے واپسی کی جانب رخ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے ان کا پرسان حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ڈاکٹرز موجود ہیں، نہ نرسز موجود ہیں۔ او پی ڈیز پہ بھی باقاعدہ تالے لگ چکے ہیں۔ لوگ جو شہری اتنی دور سے یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، مریض موجود ہے جو یہاں ٹیسٹ کروانے کے لیے آئے تھے، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا، آپ یہاں آئے ہیں اور او پی ڈی جو ہے وہ بند ہے، آپ کیا کہیں؟
मैं तो यही कहूँगा, मेरी वज़ीर आला से इल्तिजा है कि प्लीज़ ऐसे जो रवैये हैं डॉक्टरों को, उनको सख्ती के साथ उनके साथ बिहेवियर करना चाहिए। ये जो गरीब आवाम है रो रही है, मैं आज 3000 रुपये का पेट्रोल लगा के आया हूँ, कल फिर मैं 3000 का पेट्रोल डलवा के आऊँगा। मैं तो इस वक्त गरीब आदमी हूँ, मैं तो 10 रुपये खर्चने के चक्कर में भी नहीं हूँ। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मैंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी हैं, मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवा के ऊपर क्रीम करवा के आया हूँ, 3000 रुपये मैंने भरा उसका। तो यहाँ पे इन लोगों का कौन वाली वारिस है? कोई भी नहीं है। ये हुकूमतों के खोखले नारे, खोखली बातें, ये अवाम के आप देख लें, ये सारा कुछ देख लें, ये सब कुछ खोखला है। एक डॉक्टर काबू, जिस हुकूमत के अंदर डॉक्टर काबू नहीं आ रहे, वो मुल्क को क्या चलाएंगे? हम लोग रुल गए हैं, हमारी दाद रसी वाला कोई बंदा है ही नहीं, सुनने वाला ही नहीं है। मैं खुद 10 मिनट हो गए मेरे खड़े हुए यहाँ पे, अब मेरी टांगें कांपनी शुरू हो गई हैं। मैं पेशेंट का मरीज़ हूँ, मैं दिल करे जाके उधर गिर पड़ूँ। तकरीबन मुझे अब 4 चक्कर लगवा चुके हैं, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। कभी आप आउटडोर चले जाएं, कभी आप इनडोर चले जाएं। मैं तो पागल हो गया, मेरा आधा दिमाग ख़राब हो गया कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। ये डॉक्टर हमारी खिदमत के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, आपने जाना कि जो मरीज़ जो हैं तड़प रहे हैं, चक्कर लग रहे हैं, इतना किराया खर्च के यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं। हमारे पास साथ एक और मरीज़ों की फैमिली मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, कहाँ से आए हैं? जी बेटा, कोट आदि नारंग मंडी, ज़िला शिवपुर, तहसील फिरोजवाला, थाना नारंग मंडी। ਅਸੀਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਲਪਦਨ ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ बेटा। मेरे वालद साहब के अंदर कोई मसला है, टेस्ट अभी लेकर आ रहे हूँ। टेस्ट थब्बा मेरे पास है, पता नहीं कितना को खून काट कर, कभी बोलते सिटी स्कैन करना है, अभी करना है, घड़ी करना है। एडे एडे बच्चे ने, लड़के उन्हें समझ नहीं करती। असी उन्हें हथ भी जोड़े, पैर डिगा, बेटा नहीं इलाज उसका, मुझे जवाब दे दो जी। 4 दिन बाद इससे आए, 3 दिन बाद हैं हम आए, लिखा पड़ा हमारे पास है, फाइल उनके पास है। आज असी आए हैं तो ताला बंद है। मेरे वाल साहब रात तकलीफ रही, रात सारी तड़प के ना थानू पता राउंड बदी कटी। मेरे वाल सारी की लात की करिए, अभी लैके आए सर बसे थे तक नहीं लाते सन जवाब दे बाल सब लै जी। अभी 4 हस्पतालों कोई कितने इलाज नहीं, जंदरे बंद ने, ताले बच्चे ने। असी रो पिट के बाहर बह गए। 1500 रुपया जान कर, 1500 मेरी मशीरा पाक पतन तो आई है, पाक पतन तो वेली लगे तो मेरी मशीरा वाल साहब वास्ते कैसे दाखिल करना है या सुन तो आए तो काट हो जी बिल्कुल, आपने देखा कि कैसे जो हैं मरीज़ों के लवाहिकीन भी अश्कबार हैं, और इसके अलावा मरीज़ भी जो है दर्द से तड़पते हुए, सिसकते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरामैन ने भी आपको दिखाया। अभी इसी तरह यहाँ पे जो है एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, ताले लगे हुए हैं। डॉक्टर की जानिब से जो है हट धर्मी की इंतहा हो गई है, और यहाँ पर इस वक्त यही सूरत हाल है। और ऐसी हज़ारों फैमिली जो हैं रो के, सिसक के वापस घरों की जानिब जा चुकी हैं। जी शुक्रिया सामिया। सरकारी हॉस्पिटल में मरीज़ों का कोई पुरसाने हाल नहीं, हज़ारों रुपए किराया खर्च करके आने वाले मरीज़ खार हो गए। वालिद ने रात तड़प कर निकाली, अब अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर्स मौजूद नहीं। लवाहिकीन का क्या कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। सुबह 4 घंटे से बैठा हूँ, उधर किसी ने बात नहीं सुनी। बहुत मुश्किल में, दर्द बड़ी हो रही है मुझे, बहुत दर्द हो रही है मुझे, किसी ने बात नहीं सुनी। सुबह से 10 दिन से बीमार हूँ, पहले चेक कराया था, रिपोर्टें मिलनी थी, कुछ भी नहीं हुआ, बस खाली वापस जा रहे हैं। ये किराए पे पहले भी ऊबर लेके आए, अभी भी वो किराए पे लेके जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल है मुझे। उन्हें पर्ची बंद है, डॉक्टर हड़ताल की थी है तो घर जाओ, जो हड़ताल खुलेगी तो साड़ी तकलीफ बड़ी तकलीफ की वजह इतने आए हैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, तो पाँव जो है ख़राब है, उसकी पट्टी भी करानी थी और बुखार की दवाई भी लेनी थी। ये गरीब बंदा है, ये ऑपरेट करने के लिए आया है, इसको 6 से 7 महीने के बाद जाके टाइम मिला है। 7 महीने के बाद आज आया है, तो आज हड़ताल है। डॉक्टर में तो पेट भरना ही नहीं, जितना मर्जी खा जाए, यहाँ से भी खा जाए, प्राइवेट खा जाए, जहाँ से मर्जी लेके खा जाए, इनका पेट नहीं भरता। तो अस्पताल में आते हैं कि चलो चलो मेरे दिमाग का मसला है, तो अब मतलब हम क्या करें? इनकी मेडिसिन लेके मेरे लिए आज जाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इनको मेडिसिन ना दी तो इनका मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो अब हम कहाँ से मेडिसिन लें? और ये आराम से दरवाजे बंद करके, हॉस्पिटल बंद करके, ओपीडी बंद करके। डॉक्टर नर्सेज के एहतजाज का मामला सुबह भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1989 के तहत लगाई।
आपको अपडेट कर रहे हैं। दफ़ा 144 लगा दी गई है 7 रोज़ के लिए। डॉक्टर नर्सिस के एहतजाज का ये मामला है, जिसके बाद सुबह भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1989 के तहत लगाई है। सुबह भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। डॉक्टर नर्सिस के एहतजाज का ये मामला है और उस बारे आपको बताएं कि 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहर में सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ बंद, मरीज़ इलाज के लिए दरबदर। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक का वासा हेड ऑफिस का दौरा। इजलास में हल्का PP 153 में सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। ताजपुरा स्कीम में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की मंजूरी भी दी गई है। ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की मंजूरी भी दे दी गई है ताजपुरा स्कीम में। उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं अहम खबर के बारे कि मरीज़ इलाज के लिए दरबदर हैं। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक का वासा हेड ऑफिस का दौरा। इजलास में हल्का PP 153 में सीवरेज वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। ताजपुरा स्कीम में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की मंजूरी भी दे दी गई है। ये मनाजर भी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। एक तरफ तो सरकारी हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ बंद है और हमने दिखाया भी कि मरीज़ इस वक्त रुल चुके हैं और मरीज़ रो रहे हैं, लेकिन वज़ीर सेहत साहब वासा हेड ऑफिस मौजूद हैं। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल जी, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से लाहौर की जो तमाम इंतखाबी हलके हैं वहाँ पर तरक्याती पैकेज दे दिया गया है। तो इस वक्त तमाम मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली ये जो तरक्याती पैकेज है इस पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं। इसी तनाजुर में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया, जहां MD वासा गुफरान अहमद ने इनसे मुलाकात की और बाद अज़ां सूबाई वज़ीर सेहत की सरबराही में इजलास का इनेकाद भी किया गया। और इस इजलास में खसूसी तौर पर हल्का PP 153 में सीवरेज और वाटर सप्लाई के तरक्याती मनसूबे और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर ये भी बताया गया कि ताजपुरा स्कीम में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक की मंजूरी भी दे दी गई है और ये ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक से 14 लाख गैलन बारिशी पानी को महफूज बनाया जा सकेगा, जबकि वाटर टैंक की तमीर से ताजपुरा स्कीम और मुल्हिका इलाकों से अर्बन फ्लडिंग जैसे जो खदशात हैं उनमें भी कमी आएगी। इसके अलावा MD वासा ने हल्का PP 153 में फौरी मसाइल के हल के हवाले से हिदायत भी जारी की और तमाम अफसरान को अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर अवामी शिकायत के फौरी अजाले को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। शुक्रिया ज़ैन। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को मुकर्रर करने का इख्तियार हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त शहरी मोहम्मद असलम ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, ड्रैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद जानते हैं, बताइए इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में अद्वियात की कीमतें मुख्तलिफ कंपनीज़ को मुकर्रर करने का इख्तियार देने के इकदाम को चैलेंज कर दिया गया है और ये दरख्वास्त शहरी मशकूर हुसैन ने एडवोकेट नदीम सरवर की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इस वक्त नदीम सरवर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। क्या दरख्वास्त में सर मौक़िफ़? दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ड्रैब ने जो कीमतें इख्तियार करने का इख्तियार है वो प्राइवेट कंपनीज़ को, फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे दिया है, वो गैर आइनी इकदाम है। और इसके अलावा जो सेक्शन 36 है ड्रैब एक्ट का 1976 के, उसकी वायलेशन है। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट टू लाइफ है, उसकी जो है वायलेशन, ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो जो कीमतें मनमानी मर्जी से मुकर्रर करने का इख्तियार जो है ड्रैब को देना एक इंतहाई गैर आइनी अमल है। जी बिल्कुल, दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ड्रैब को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देना ये गैर आइनी, गैर कानूनी है और यही इस्तदा अदालत से की गई है कि इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और पिटीशन के ख़त्मी फैसले तक नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए। शुक्रिया इशफाक। लाहौर समेत सुबह भर में खसरा के 139 मरीज रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा लाहौर में 21 बच्चे खसरा का शिकार, मुल्तान में 17, रावलपिंडी 8, शेखुपुरा 9 और बहावलपुर में 13 मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में खसरा के बायस बहावल नगर में एक बच्चे की हलाकत हुई। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं, बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब में खसरा केस में वाज़ेह तौर पर जो कमी है ये भी देखने में आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में पंजाब में खसरा के मजीद 139 जो मुश्तबा केसेज हैं
ये सामने है, जबकि गुजशत 24 घंटों में खतरे के बायस किसी बच्चे की हलाकत नहीं हुई। जबकि रवां साल में अब तक खतरा के बायस 14,000 जो मुस्तफा केसेज हैं ये रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि गुजशत 24 घंटों में लाहौर में तकरीबन 21, सुल्तान में 17, शेखपुरा में 9 केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह बहावलपुर में 13, गुजरांवाला में 10, फैसलाबाद में 10 तो बहावलनगर में 4 खतरा के केसेज रिपोर्ट हो गए हैं। इस वाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि महकमा सेहत के पास खतरा से बचाव की वैक्सीनेशन की कसीर तादाद मौजूद है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए कि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे को लाजमी खतरा से बचाव की वैक्सीनेशन करवाए। जबकि इस हवाले से पंजाब भर में जो वैक्सीनेशन मुहिम है ये भी तेज कर दी गई है, जिससे साथ है कि डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आपका शुक्रिया बिलाल। बिजली चोरी ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए लेस्को का AMR मीटर्स लगाने का हतमी फैसला। 3 फेज़ कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत में 29,950 रुपये इजाफा कर दिया गया। मीटर की कीमत 63,450 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, शहरी परेशान हैं। 3 फेज़ कनेक्शन के हवाले से आपको बता रहे हैं कि उसके रेट में इजाफा कर दिया गया है। बिजली चोरी ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए लेस्को का AMR मीटर्स लगाने का हतमी फैसला सामने आया है। 3 फेज़ कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत में 29,950 रुपये इजाफा। मीटर की कीमत 63,450 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस पर शहरी परेशान है। AMR मीटर लगाने का फ़ैसला कर दिया गया है और कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। मीटर की कीमत 63,450 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइए ये AMR मीटर क्या है और इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा और शहरियों को इस हवाले से क्या फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, लेस्को की जानिब से 3 फेज़ मीटर की जगह अब AMR मीटर जो है वो लगाने का हतमी फैसला किया गया है। और ये AMR मीटर जो हैं वो जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल मीटर जो हैं वो हैं और ऑटोमेटिक रीडिंग की सलाहियत रखते हैं। बिजली चोरी, ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग की रोकथाम के लिए जो है वो ये फैसला किया गया है कि तमाम 3 फेज़ कनेक्शंस को जो है वो AR मीटर की जगह जो है वो तब्दील किए जाएंगे। लेस्को ने जो है वो जैसे ही ये फैसला किया तो 3 फेज़ कनेक्शंस के लिए मीटर की कीमत में भी जो है वो होशरुबा इजाफा कर दिया है और इसमें 29,950 रुपये फी मीटर जो है वो इजाफा किया गया है। 3 फेज़ कनेक्शन के लिए मीटर की कीमत जो है वो 33,500 रुपये से बढ़ाकर अब 63,450 रुपये कर दी गई है। लेस्को इंतजामिया ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद इसका जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ताहम मीटर्स की कीमत में होशरुबा इजाफे से शहरी जो है वो परेशान हैं। जी, आपका शुक्रिया फ़हद। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महंगाई का तूफान ताहाल थम न सका। अदरक 800, लहसुन 500, टमाटर 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। सेब दर्जा अव्वल 450, खुबानी, आड़ू और आम सिंधरी 250 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे। बरालर गोश्त की कीमत में 15 रुपये कमी। मुर्गी का गोश्त 470 रुपये से 455 रुपये फ़ी किलो। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज कीमतों के हवाले से बात की जाए तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक या हरे मसालों की कीमतें जो हैं वो अब भी अवामी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं हो सकी हैं। 40-50 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाला प्याज और 30 से 40 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाला टमाटर के हवाले से बात की जाए तो आज जो सरकारी नखनामे जारी किए गए उसमें प्याज 5 रुपये महंगा करके 110 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज 140 से 160, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है वो 120 से 130 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में 120 से 150 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का टमाटर, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं जिन्होंने ख़रीदारी की, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा क्या क्या ख़रीदा है, कितने का, कीमतें कहाँ जा रही हैं? ये टमाटर मैंने ख़रीदे हैं मिक्स, ये 100 रुपये किलो मिले हैं। और भिंडी जो ली है वो 80 रुपये। बहुत ज़्यादा कीमत है, क़ुव्वत ख़रीद से भी बहुत ज़्यादा। फल तो मैंने अभी ख़रीदा तो नहीं, पर आम 200 रुपये किलो है और तरबूज जो है वो 50 से 60 रुपये किलो है। ये आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो पहले कितना खर्चा हो जाता था? जो सामान मैं पहले ख़रीदता था 7,000 में महीने का राशन, 7 से 8,000, अब वो 15 से 18,000 रुपये में। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि महंगाई मुसलसल बढ़ चुकी है और एक आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। सब्ज़ियाँ, फल या शे खुरनोश की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो किचन का बजट जो है वो दुगना से भी तजावज़ कर चुका है। 6 से 7 हज़ार रुपये में एक माह की ख़रीदारी जो है वो अब
14 से 15 हज़ार रुपए तक पहुँच चुकी है। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम कदरे बेहतर, बादलों ने जुज़वी तौर पर रखते सफ़र बांधना शुरू कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के इम्कानात कम, हफ्ते से मौसम बतदरीज गर्म होना शुरू हो जाएगा। सोहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं, बताइए सोहेल। गुज़श्ता रोज़ जो बारिश ने अपना रंग ढंग दिखाया था तो उसके असरात अभी तक मौजूद हैं कि आज भी लाहौर में धूप और छाँव का खेल जो है वो चल रहा है, लेकिन आज कोई बारिश के ज़्यादा इम्कानात नहीं है। हो सकता है कहीं पर कोई हल्की फुल्की सी ऐसे ही कोई बूंदाबांदी देखने को मिल जाए, लेकिन जिस तरह कल बारिश हुई उसके इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से। लेकिन मजमूई तौर पर आज का मौसम भी कदरे बेहतर रहेगा, कदरे अच्छा रहेगा। मतलब हम उन अयाम की निस्बत बात कर रहे हैं कि जिस दौरान हम शदीद गर्मी की एक के बाद एक हीट वेव जो है भुगत चुके हैं, जिस दौरान लाहौर का दर्जा हरारत जो है कई एक मौके पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा चला गया था, ऊपर चला गया था। और इस तरह जो एक के बाद एक हीट वेव आती गई तो उसके बायस काफ़ी परेशानी का सामना भी रहा। और 22 तारीख के बाद मौसम एक मरतबा फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अब शायद टेम्परेचर उस तक नहीं जाएँ कि मतलब 45 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर ना जाएं। लेकिन ये जो मौसम अब शुरू हुआ है इसमें गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो भी उसकी वजह ये होती है कि हवा में नमी का तनासुब जब भी बढ़ता है तो फिर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है। और अब ये मौसम शुरू हो चुका है और अब आगे आने वाले दिनों में बारिशों के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। शुक्रिया।